Guys, I'm here now. Let's start. Uh, 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 Now it's better. Let's start after 2 minutes. Let's start. Okay. Hello, hello. Let's starting the video, right? And here it is. So we are starting with physics chapter 3, kinematics. Kinematics एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. कोई कमी नहीं. सब परफेक्ट चैप्टर फॉर. बट a minute. It's a perfect chapter for all. Kinematics बहुत प्यारा चैप्टर. मोशन इन वन डायमेंशंस. लेट्स स्टार्ट. मोशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा चैप्टर है. सो विदाउट एनी डिले गोइंग ऑन. Mechanics. So what is mechanics? Mechanics is a branch of physics which deals with the study of the motion of physical body. This is a branch actually. This is a branch of the physics which deals, that means which do the study of the motion of physical bodies. Yeah, that means what are the physical things that we present in our environment, we will study in mechanics. Hope so get it. Now, statics. So, it is a branch of mechanics. Mechanics, it is a branch of physics, and statics is a branch of mechanics. So what is this? Which deals with the study of physical bodies at rest. This is epic things. Hello, hello. This is the epic things right hands. Statics is that the branch of mechanics which deals with the study of physical bodies. But, that means physical bodies when the body is at rest, and when we study about that, then this branch is called statics. And what about kinematics? So firstly, hello, Manas, welcome. So for that, आज क्विज नहीं है. आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद कल ग्रैंड क्विज. आना जरूरी है, जरूर आना है. So what about the kinematics? It is a branch of mechanics which deals with the study of the motion of the physical. That means in statics we will study about the rest, when the motion at rest. But in the kinematics, when the object is in motion, we study. When we study an object, when it is in motion, a physical object when it is in motion, it is a kinematics. Okay, get it? I think so. Got it. I think so. You all got it. 1 minute. I think so. You all got it right. What about the dynamics? It is a branch of mechanics which deals with the study of the motion of physical bodies, taking into account the factors which is called. There is a small difference. एक छोटा सा डिफरेंस है इसके बीच में. हिंदी पे आ जाता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा टोन हिंदी होना चाहिए, भारतीय, इसलिए मैंने इसको स्टडी लेवल्स को हिंदी में रखा है. सो
which deals with the study of the motion of physical bodies without taking into account the factors which causes motion. Okay, काइनामेटिक्स में इन चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता जो मोशन से रिलेटेड होती है या फिर मोशन को बनाती है, बट इन डायनामिक्स इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। नाउ रेस्ट एंड मोशन. Rest and motion we all study in ninth. What is about rest? When we do not do anything or the object is at rest. An object is said to be rest if it does not change position. अगर कोई अपना ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करता है then it will be called रेस्ट इन मोशन. में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी वर्ड है, right? While studying this chapter, we will treat the object's point as mass. That's not so, you know, important. Not important. Now, position, distance and displacement. Displacement का वर्ड आपने सुना होगा नहीं? Position, the position of an object always defined with respect to some reference point. This we gradually refers to. Position, किसी भी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन, suppose this is, ये है पॉइंट, तो ये हो गया आपका पोजीशन. Let some change. Distance, so this is, we say, यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक का इस एरिया को अगर हमने कवर करा है then this is called. And what about the displacement? Let me explain. Let's see. Now, here is the object. Object यहाँ पर है, ठीक है? ओ, और उसकी डेस्टिनेशन यहाँ पर, उसे जाना यहाँ पर है. देन उसके पाथ काफी सारे हैं, यहाँ से भी जा सकता है. सपोज ए, बी, सी और डी. इस वीडियो में मैंने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर, कहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, ये भी एक डिस्टेंस होगा, ठीक है? यहाँ से जा सकता है और एक और काम कर सकता है, यहाँ से जा सकता है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. Shortest distance ever covered is called displacement. Is called displacement. और इसमें shortest distance क्या होगी? BD. Sorry. Shortest distance क्या होगी? BD. So distance, actual path transferred by the body during the course of motion. यानी if there is a D point और अगर उसने डी ए से लेकर ए बी तक लिया then it's a distance, we all know. बट अगर उसने shortest distance यानी बी डी लिया then it will be a displacement. And the displacement of SI unit is meter. Displacement की SI unit always मीटर में गिनी जाती है. नहीं अभी नहीं लगाना, थोड़ी देर बाद, ठीक है? थोड़ी देर बाद हम ट्रैक, ठीक है, थंबनेल्स का, देन थंबनेल्स लगा देंगे. ओके, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम. ओके, नाउ
What about the difference between a distance and a displacement? What about the difference between a distance and a displacement? It's a easy one. The actual path transferred by the object in the course of motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है देन इट विल बी अ डिस्टेंस. एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? Difference between the initial and the final position is called the displacement. That means और ये हमेशा लोएस्ट आएगा. This is like this. Okay, x2 minus x1. तो ये x2 जो होगा इसमें वो होगा आपका फाइनल लेंथ एंड x1 जो होगा वो इनिशियल. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आई थिंक ऑल यू नो. ओके, कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है, थैंक यू. ठीक है. सो वे आर टू वेयर्स बट एक ही रेस्पॉन्ड कर रहा है तो थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा. नाउ इट्स इजी लाइक the distance traveled by an object during the course of the motion is never negative or zero. That means when the object is you know playing any distance or cover any distance, then it will never be negative. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है. या कभी डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल करी है कि आप यहाँ थे, आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो -1 किलोमीटर हो गई, होता है क्या? होता है या नहीं? एक मिनट, आई थिंक इट्स बेटर. होता है क्या? एनीवन? क्या डिस्टेंस -1 किलोमीटर हो सकती है? यस और नो? यस और नो? एंड वन मोर थिंग, क्या डिस्प्लेसमेंट -1 किलोमीटर हो सकती है? यस और नो? क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट -1 किलोमीटर हो सकती है? ये आवाज राइट नहीं हो सकती. ना डिस्प्लेसमेंट और ना ही डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी -1 किलोमीटर नहीं हो सकता. डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकती, बट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट ही मीटर होती है एंड इट नेवर बी किलोमीटर्स, राइट? देन नथिंग. हाँ जी, ये then displacement is never be less than the magnitude of the displacement. That means distance is always greater than displacement. As I say, the displacement is smallest या फिर is the shortest distance we ever covered. So how we can say that it will be a you know whatever. Now speed and velocity ये भी पढ़ चुके. I think so पढ़ चुके. देखते हैं. It is defined as the total path length traveled divided by the total time
interval during the which is the motion it plays. Speed. Speed is equal to distance upon time. फॉर्मूला होता है और यहाँ पर it is the defined as the charge in position or displacement divided by the time intervals in which displacement occurs. That means it is a defined as a change in positions like इसका formula x2 minus x1. This is change in positions and divided by the time intervals. ये होता है formula displacement. Get it? Scalar vector always positive. ये supposed ये distance के लिए मानी जाती है. This is used for distance and it is used for displacement. Okay. It is greater than or equal to the magnitude of the velocity. It is greater than or equal to magnitude. That means या तो इस वेलोसिटी के बढ़कर होगी या उसके इक्वल, बट इट नेवर बी लेस देन. That means in English I will tell you, if this magnitude or the speed is never be greater or equal to, as I say that, it will be in the distance formula like this. जैसे कि मैंने कहा कि ये distance में है, so it will be as you can say that the speed is equal to distance, so you can easily rectify it, right? Now note about that. What about the note? If the motion of an object is along a straight line and in that same direction, the magnitude of displacement is equal to the total path. And about the displacement, we do not need any of this. Now, scalar and vector quantities. Scalar and vector quantities. It's also a very important thing. So, what are the scalar quantities? Which we can, okay, हिंदी में भी बता देता हूँ, इंग्लिश में भी, both language. So, what about the scalar languages? So, what about the scalar languages? Scalar languages is the languages, quantities, sorry, scalar quantities. So, scalar quantities is the quantities which we can measure it on a scale, but we cannot be in direction on. मतलब क्या कि हम उसे डायरेक्ट सॉरी स्केल पर मेजर कर सकते हैं बहुत प्यार से. अब वैसे नहीं कि अब तुम 15 सेंटीमीटर वाले स्केल पे मेजर करने लगो. व्हाट अबाउट वी कैन मेजर इट विद मीटर्स, किलोमीटर्स, मील वगैरह, उस पर हम इसको मेजर. एंड वेक्टर क्वांटिटीज एज वी कैन मेजर इट बट वी कैन डायरेक्शन अबाउट इट, यानी हम इसका डायरेक्शन भी ले सकते हैं या मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हैं. इट्स मैग्नीट्यूड, राइट. एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला जरूर आएंगे. It is defined as a change in the position of the displacement divided by the time travels in which the displacement occurs. ठीक है. ऐसा यूनिट वेलोसिटी डायमेंशंस, इसको याद रख लो. इसको याद रखोगे सही रहोगे, वरना मारे जाओगे. L/T या फिर यही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, एवरेज स्पीड का भी तुम्हें पता ही होगा. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और हाँ काइनेमेटिक्स में
मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर पूरा ही खेल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस पे आ जाते हैं। इन सबके फॉर्मूलाज में बताऊंगा जरूर, डोंट वरी। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, पहली बात, जिसको अच्छा लग रहा हो प्लीज थोड़ा सा रहम कर लो यार। थोड़ा सा रहम कर, एक सेकंड। जिसको अच्छा लग रहा हो यार, थोड़ा सा रहम कर लो, आने की जरूरत नहीं। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा टाइम देख लेते हैं, टाइम है या नहीं। 20 मिनट है, बताएं, काफी टाइम है। यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ग्राफ्स का बाद में करेंगे। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, it is a velocity as an instant t. The velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as in timetable. ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, तो एक बार पढ़ लेना, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ एवरेज एक्सीलरेशन, इसका फॉर्मूला तो जरूर ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है ए average acceleration, so v2 minus v1। आई थिंक इसमें ग्रे नहीं रखा है, इसलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसको, v2 माइनस, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना है एवरी बॉक्स। ओके, और क्या है, ओके गिवन है, सॉरी देखना भूल गया था मैं। कोई नहीं, इसको लिख दो इतना। ठीक है, इसको ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ लेना एक बार, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये देखो, a is equal to v2 minus v1 अपॉन माइनस जीरो छोड़ो। ठीक है, ये v is equal to v plus, but it's v1, it's v formulas। okay, now graphs। I think ये तो चैप्टर आज ही, बल्ले बल्ले, आज ही खत्म हो जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। यूनिफॉर्म मोशन, in an uniform motion a body covers equal distance in equal interval of time। easy, velocity is constant during the course of time। easy, more easy। now displacement time graph, what about this? displacement type graphs को चलो अभी ऐसे, अगर आपको पहले ये वाला ग्राफ पे थोड़ा सा ज्यादा नजर डालो, इसमें ना स्लोप के नेचर पूछा जाता है और मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, लाइक दिस, कैसे बताऊं, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा भी आता हूँ, एक मिनट के बाद आई विल बी बैक। ओके, सी है,
ग्राफ्स के बारे में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ नेचर ऑफ द स्लोप्स। सो दिस इज अ स्लोप, ठीक है। अगर स्लोप लाइक दिस कुछ ऐसे जा रहा होगा, देख रहे हो, कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये where is the eraser? अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। अगर स्लोप इस ऐसे जा रहा होगा कुछ, then it will be said that this is a positive sign, ठीक है। नेचर ऑफ द स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड कांस्टेंट आल्सो। व्हाट? कांस्टेंट आल्सो, ठीक है। मतलब कैसे? क्या यहाँ पर आपको कहीं पर भी, चलो मैं बता दूंगा, कांस्टेंट आपको पता चल गया होगा, इनकांस्टेंट में बता देता हूँ कैसे। अगर आपका स्लोप, सॉरी, अगर आपका स्लोप लाइक दिस है, ठीक है, एंड दिस कुछ ऐसे है, देन इट विल बी ए नेचर ऑफ द स्लोप जो होगा आपका, वो होगा, नेचर ऑफ द स्लोप होगा इनकांस्टेंट, बिकॉज आप जा रहे थे बट बीच में ही रुक गए, आप जा रहे थे बट बीच में ही रुक गए ना, मजा नहीं आया। ठीक है, जा रहे थे बट बीच में ही रुक गए, तो इट विल बी अ इन, जा रहे थे बट बीच में ही रुक गए ना, इट विल बी इनकांस्टेंट। तो हैव वी गॉट इट? एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, it will also be a positive, it also positive, because we never go negative here। now negative कैसे जाएंगे? जा रहे हो, इसके साथ भी बड़ी दिक्कत है, जा रहे हो लाइक दिस, ऐसे गए, ऐसे, ओके, ऐसे गए एंड ऐसे, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, वैसे तो इनकंसिस्टेंट ही होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस क्योंकि 3 टाइम्स चेंज हुआ यार, 3 टाइम्स तो कुछ भी चेंज नहीं होता, इसलिए इनकंसिस्टेंट हुआ। एंड वन मोर थिंग, इसको हम रेस्ट कहेंगे या फिर नो चेंज कहेंगे, और कुछ नहीं कह सकते। वन मोर पॉसिबिलिटीज,
there is one more possibility. One more possibility. What about this? कि यहाँ से जा रहे हो और ये सीधा नीचे, then it will be constant. कांस्टेंट तो हो गया, क्यों? क्योंकि नो चेंज यार, कुछ चेंज नहीं है। यहाँ से जहाँ पे शुरू करा था वहां से कोई चेंज नहीं मिला, कोई ग्राफ में चेंज नहीं आया। एंड इट विल बी सेट टू बी अ नेट। ओके, ग्राफ कल करेंगे। एंड व्हाट अबाउट, अब आगे क्या करेंगे? ये ग्राफ्स कल देखेंगे, आज नहीं। एंड वन मोर आई हैव, वन मोर थिंग आई हैव फॉर यू, दिस क्विज टाइम नहीं, इसे मैं कुछ और उपाधि देना चाहूंगा। ठीक है, असाइनमेंट है। व्हाट इज स्टैटिक्स? हाउ वी से दैट द बॉडी इज रेस्ट, रेस्ट है ना? ठीक है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। एंड वन मोर थिंग मैं भी बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। गूगल क्लासरूम पे आपको उसको सबमिट करना है। ठीक है, गूगल क्लासरूम। एंड वन मोर थिंग, एक मिनट रुको, बताता हूँ। आई एम नॉट रॉन्ग, हियर इट इज। सो आपका जो नंबर है, यानी जैसे ही आप ज्वाइन क्लास में जाएंगे, देन आपको ये नंबर डालना होगा, GHGWVLU। ये नंबर डालना होगा, कोड फॉर गूगल क्लासरूम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चैट पे आपको दिख रहा होगा। इस पे सबमिट करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, बाय बाय। तो ये काफी सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। कल हम ग्राफ्स करेंगे, ग्राफ्स देखेंगे। तो बाय बाय, हैव फन। बाय बाय, हैव फन।